Yes, we have a question on distance formula. First, the question is on centroid of a triangle. A 5x, B minus 4 3. The third point C y minus 2. These are the vertices. Yes. Good afternoon, all of you. Vertices of triangle. Then it is given that origin is the centroid of the triangle and origin is centroid of the triangle. Centroid. Then what are the values of x and y? X and y are what? It's our question. Origin given is the centroid of the triangle. Then what are the value of x? पहले x की वैल्यू अगर हो सके तो निकालो. बहुत सिंपल है. ये तीनों का कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट का यस तीनों के नहीं फिर से देखो तीनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन जो है तीनों के x कोऑर्डिनेट का एडिशन जो है 5 minus 4 plus y upon 3 is 0. Origin is the centroid of the so y minus 4 plus 5 मतलब y plus 1 upon 3 equals to 0. 5 minus 4 1 plus y plus 1 upon 3 0 मतलब y will be what? Y will be minus 1. y minus this y will be minus 1. ओके अभी आपको x निकालना है तो x plus 3 minus 2 upon 3 0 y minus 1 y is minus 1. अभी हमको x निकालना है. We have to find the value of x. x जो है y कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है. y जो है -1 है. ओके बराबर है कुछ लोगों का आंसर. x plus 3 minus 2 x plus 3 minus 2 means x plus 1 upon 3 0. So x is also -1. Both are -1. 3 minus 2 1 1 plus x upon 3 0. तो मतलब x plus 1 upon 3 0. ये y कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है. So x will be what? 0. So x will be what? X plus 1 will be what? 0. X will be -1. So x is -1, y is -1. Both are -1 1. -1 and -1. We use here the centroid formula and coordinates of origin as a 0 0. See here we have what? We have these are the vertices of triangle ABC. Yes, -1. See here. अभी ये 5 है -4 है ये x कोऑर्डिनेट है. What is the centroid formula? Sum of x coordinate upon 3 and sum of y coordinate upon 3. x कोऑर्डिनेट में y है और y कोऑर्डिनेट में x है तो आपको पहले y की वैल्यू मिलेगी. कैसे? 5 -4 plus y तीनों के x कोऑर्डिनेट upon 3 is the x coordinate of center. 5 minus 4 plus y. Similarly, x plus 3 minus 2 upon 3 is a y coordinate of center, but centroid. But both are given origins, coordinates of origin with 0 0. This is 0, this is 0. Denominator will become transposed to the RHS. 5 minus 4 plus y, that is y plus 1. Y plus 1 upon 3. And this is x plus 1 upon 3. Now, these two values are 0 0. So y plus 1 upon 3 0, find y. Y plus 1 upon 3 will be 0. So y plus 1 will be 3 will be transposed, it will become 0 and hence y will be -1. X plus 1 upon 3 0, 3 will be transposed, x plus 1 is 0, x is -1. Always write, always think directly. When division is 0, y plus 1 upon 3, जब division 0 होता है तो numerator 0 होता है. Numerator 0 मतलब these are negative of each other, y will be -1, numerator will be 0.
X will be -1. So my X is -1 and Y was -1. Was the answer of our this question? The question was depend on the centroid of a triangle. Again, I have a question which is related with the centroid and vertices of a triangle. सेंट्रॉइड क्या करती है? सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है. The centroid of triangle divides the median in the ratio 2:1. 2:1. So this concept will be used. Here centroid of a triangle are coordinates of centroid. Coordinates of centroid are 2, -5. This is a coordinate of both x coordinate and y coordinates of centroid here. And this is a centroid of coordinates of a triangle PQR. Triangle PQR. There is a triangle PQR, and this triangle has vertices Q and R. Q has a vertex -6, 5. R is having coordinates 11, 8. Automatically, what you have to find? You have to find x coordinate of point P and y coordinate of point Q. Coordinate of centroids are 2, -5. Triangle PQR. Q is given -6, 5. R is given 11, 8. It is asked to find the coordinates of point P. Again, centroid formula. Coordinates of P. What about the coordinates of point P? What are the coordinates of point P is our question. We have question to find. What are the coordinates of point P? This is our question. What are the coordinates of point P? P is what? This is our question. What are the coordinates of P? बहुत सिंपल है. P के दोनों कोऑर्डिनेट को कभी भी सपोज करना है, जो गिवन है उसको सपोज करना है. लेट इट बी x and another be y. So ये x में -6 + 11 अगर ऐड किए और उसको 3 ने डिवाइड किया तो 2 मिलता है. ये 2 x coordinate of centroid, -5 is a y coordinate of centroid. So x plus 11 minus 6 upon 2 upon 3 will be 2. So x plus 11 minus 6 मतलब 5. X plus 5 upon 3 will be 2. X will be x plus 5. So directly x is 1. 1 plus 5 6 upon 3 2. X की value 1 है. The value of x is 1. So x will be 1. अब y find करो. Similarly y 8 है 8. 8 plus 5 plus y upon 3 will be -5. See here to find y. 8 plus 5 plus y upon 3 will be -5. -5 will give you -15. 8 plus 5, 13. 13 plus y will be -15. 13 plus y will be -15. Hence, value of y will be -28. So x is 1 and y is -28. So point P has a coordinates 1, -28. These two problems were depend on the centroid of a triangle. Centroid of a triangle. Now we are going towards the next problem. So you were familiar with these problems again. Though you are familiar, I think you are familiar with such a type of problems. But in next some problems, though you are familiar, I am going to tell you some shortcut tricks. इसमें कुछ नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. So the next question similarly to this, very simple question is there. Same. अगर हमारे पास सेंट्रॉइड है, दो वर्टेक्स है, we can find the third vertex. अब हम जाएंगे when you are given collinear points. See here, point P has a coordinates a, -4. Point Q has coordinates -2, B. Point Q and point R has a coordinate 0, 2.
and these are collinear points. Collinear मतलब on the same line. Collinear points, PQR. These are the collinear point. These are the collinear points, such that you are given PR is equals to, PR is 2QR. They are on the same line. PR is double QR. Try to understand the situation. PR is double QR. PR जो है QR का डबल है, मतलब QR छोटा है. PR की लेंथ इससे डबल है. दूसरी बात देखिए, आपको अब 10th तक है ये. अगर ये 11 12 में होता है तो उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आते हैं. आपको सीधा देखना है, PR QR का डबल है, मतलब PR बड़ा है, तो आपको ऐसे लेना है. इधर P, ये डायग्राम हम बना रहे हैं, डायग्राम गिवन नहीं है. ये P है और ये इधर R है और इधर किसी जगह Q होगा. ये QR का डबल है PR. See here again, PR is 2QR. Try to understand. कौन ग्रेटर है? PR ग्रेटर है. कितना ग्रेटर है? QR से डबल है. सो आपको क्या करना है? ये PR, ये आपका PR होगा एंड Q विल बी देयर. हाँ यस. अब इसका ये कंप्लीट डबल है, बराबर है. इसका जो वैल्यू है इससे ये PR बड़ा है, डबल है, डबल. तो इससे ये डबल है, मतलब ये जो है ये दोनों पार्ट सेम है ऑटोमेटिकली. सो Q विल बिकम द मिड पॉइंट. QR से PR डबल है, तो Q becomes midpoint. Use the midpoint formula to find the value of A. midpoint formula क्या है? PR का midpoint है Q, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 इक्वल्स टू, -2 कैसे आया? A प्लस 0/2, A प्लस 0/2 midpoint formula. सो इससे आता है A का वैल्यू -4. The value of A -4. Similarly, to find the value of B, B का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए? To find the value of B, same. 4 - 2/2 will be B. B के लिए for finding B, what will you use? B के लिए 4, ये x coordinate, y coordinate, ये coordinate upon 2 will be P. So 2 - 4 and -2 upon 2 will be B. B will be automatically -1. The value of B is -1. So these are the values of A and B for this problem. Now we have the next question. बहुत सही क्वेश्चन है आगे का भी. What are our questions? Though the questions are looking very simple, it is given A -5(6) -5x. A is -5x. B is having coordinate. B is having coordinate x, y7. And C is having coordinate 1 - 3. And it is given that AB equals to BC. And it is also given that these are the collinear points. And AB and BC are equal. Then it is asked to find the value of x and y. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. डायरेक्ट बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. x जो है वो x कोऑर्डिनेट में जा रहा है और y जो x कोऑर्डिनेट, x जो है वो y कोऑर्डिनेट की जगह पे है. नहीं 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 नहीं, सेंट्रॉइड नहीं, कोलिनियर है. AB इक्वल्स टू BC है. AB एंड BC आर इक्वल है और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. AB एंड BC.
ये 1 है, मिड पॉइंट है, बराबर है। बी बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ, देखो ए बी और बी सी इक्वल है, मतलब बी बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो वाई विल बी -5 + 1/2. Y will be -5 + 1/2. Y will be -4/2. Y will be -2. Yes, the value of y is -2. Yes, x will be x -3/2 is 7. X -3/2 is 7. X -3 will be 14. X will be 17. Yes, very good, nice. समझ लो, B is a midpoint, hint देता हूँ, B is a midpoint. Yes, B is a midpoint. As B midpoint है, BB और BC इक्वल है, A B C, और ये these two are equal, B becomes the midpoint. Use the midpoint formula. B के coordinate y, 7. This will be obtained. ये किस तरह से obtain किए जाते हैं? -5 + 1/2. हाँ, एक्स वाई पूछा तो 17, -2 आंसर देना चाहिए। पाटिल बहुत सही। कॉमा, अभी x -3/7, x -3/2, सो इक्वेट करो, पहले y की वैल्यू मिलेगी -5 + 1 -4/2, 2, तो इधर 2 मिलेगा। सो y, 7 विल बी 2, x -3/2 को ऐसे ही रखेंगे, इधर 7 है, अभी y की वैल्यू मिल गई 2, अब जाएंगे 7 इज x -3/2, तो y की वैल्यू मिले हमें 2, y विल बी -2। अब हम जाएंगे 7 विल बी x -3/2, 7 विल बी x -3, 7 2s are 14, और ये 3 इधर आ गए, तो 17 will be the value of x. Our question was out what is x and what is y, so we obtain the values of x and y. This was again a very interesting question for you. Now we have to solve again another question. It was given a b and b c were equal. Now in some cases there will be the ratio of the segments, and from the ratio of segment you have to find the values of the coordinates. Now next question. Then it is given the point 2, -1. This is say point A. Again -1, 4. Do not name it. चलो चलो 2 मिनट, सेक्शन फॉर्मूला में बाद में जाएंगे। अब देखो और कुछ पॉइंट्स। 2 -1 -1 4. See here, there are 3 points, -1 4 -2 2. These are the midpoints of sides of triangle ABC. अब बहुत सही क्वेश्चन है ये। These are the midpoint of sides of triangle ABC. Then it will be asked what is the vertex A, what is the vertex B, what is the vertex C. So to find vertices, shortcut vertices, शायद हमने कल बताया था vertices कैसे find किए जाएंगे, ये हमारा प्रॉब्लम है। These are midpoints of the sides of triangle ABC, and it is asked to find the vertices. Midpoints दिए तो टेक्स्ट बुक वाल में या किसी डाइजेस्ट में इसी प्रॉब्लम को अलग तरह से सॉल्व किया है, वो मेथड भी मैं आपको बताता हूं पहले। These are the midpoints of sides of triangle ABC. These are midpoints है, these are midpoints. कौन से साइड्स के? हर एक साइड ए बी बी सी और ए सी, किसी भी 3 साइड आप कंसिडर करो। समझो ये ए बी का है, ये बी सी का और ए सी का है। midpoints of what? A B B C and A C, and it is asked to find the vertex A. How to find vertex A? बाकी के लिए सब जगह कैसे किया है? In all books
अब आपने कैसा सॉल्व किया है पहले ये बताता हूं मैं। इसको x1 y1 बोला है, इसे x2 y2 है, और इसको x3 y3। ये प्रोसेस है स्टेप बोर्ड वाली, ए बी सी। अब ये मिड पॉइंट दिया है ए बी का 2, -1, and the midpoint of BC is given -1, 4. Midpoint of AC is given -2, 2 ऐसे दिया है। तो अभी आपके सामने ट्रायंगल है ABC, मिड पॉइंट 2 -1, -1 6, -1 4, -1, 4 and -2, 7। ओके, ये ट्रायंगल है आपका, और इस ट्रायंगल में आपको पूछा है व्हाट आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। दिस इज आवर क्वेश्चन। लेट अस सी द अगेन वर्टाइसेस 2 -1, -1 4, -2 2। So these are the midpoints of the sides ABC, AB, BC and AC, and it is asked to find the vertices। अब मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताता हूँ और उसके बाद में शॉर्टकट भी बताता हूँ, दोनों चीजें आपके लिए काम आएगी। यू यूज्ड, आपने कौन सी प्रोसेस यूज की है? व्हाट यू यूज्ड, आपने ऐसा यूज किया है। देखिए इसके लिए आपने क्या यूज किया है, ये x1 + x2 अपॉन 2 आपका होता है। आपने ऐसे यूज किया है x1 + x2 अपॉन 2 विल बी, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का एडिशन अपॉन 2 2 आता है, सभी बुक में ऐसा दिया है। तो इससे आपको मिलता है x1 + x2 विल बी 4। डायरेक्ट लिखता हूँ x1 + x2 विल बी 4। अभी x कोऑर्डिनेट में क्या और जाएंगे, अभी x2 + x3 अपॉन 2 -1, समझ लो x2 + x3 अपॉन 2 -1, मतलब x2 + x3 विल बी -2, x2 + x3 विल बी -2। तीसरा x1 + x3 अपॉन 2 -2, x1 + x3 अपॉन 2 विल बी -2, मतलब x1 + x3 विल बी -4, x1 + x3 विल बी -4। ये आपके लिए है। इस तरह से आपको फिर आप ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तीनों इक्वेशन सॉल्व करते करते आपको तीनों जगह का एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर सिमिलर इस तरह से आप y कोऑर्डिनेट के इक्वेशन बनाओगे, y1 + y2 अपॉन 2 -1, मतलब y1 + y2 विल बी -2। ये सिमिलरली y2 + y3 अपॉन 2 4, मतलब y2 + y3 विल बी 8। सिमिलरली y1 + y3 अपॉन 2 विल बी 7, मतलब y1 + y3 विल बी 14। अभी बैठेंगे आधा घंटा सॉल्व करते ये भी। अभी आपको कभी भी क्वेश्चन में तीनों वर्टेक्स कभी नहीं होते आते, आएगा तो एक आधा वर्टेक्स आएगा, तो हमें सिर्फ उसी वर्टेक्स के बारे में सोचना है। तो ये मेथड आपके पास है, आपको टेक्सचुअल में ये मेथड आप लोगों ने फॉलो की है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो फिर आप क्या करते थे, अगर आपको थोड़ा डिस्कशन चाहिए तो ये दोनों को सबट्रैक्ट करते थे, फिर तीसरा इक्वेशन उसमें ऐड करते थे, एक वैल्यू मिलता था और दूसरे में पुट करते थे और आपको तीसरा मिलता था। सिमिलरली दोनों को सबट्रैक्ट करो, तीसरे में ऐड करो, एक वैल्यू मिलेगा, दूसरे में पुट करो, तीसरा मिलेगा, ऐसे सब मिल जाएंगे जाते हैं दो मिलने के बाद। और फिर थोड़ा सा अगर टाइम बचना है, कॉन्सेप्ट को आपको अगर अलग तरह से यूज करना है तो लेट अस सी द मेथड। बहुत सही मेथड है। इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा अलग करेंगे ड्रॉ। ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, तो शुरू में वैसे ड्रॉ करो। सो दिस इज अ ट्रायंगल, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और एक है मिड पॉइंट से रिलेटेड भी। हाँ यस यस, देखो ये पॉइंट है आपका ये, इसको आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट बी है, मैं पहले ए के बारे में बोलता हूँ, और ये पॉइंट सी है। अब हमारे मिड पॉइंट्स को हम लिखते हैं, ये दोनों का मिड पॉइंट है 2, -1। द मिड पॉइंट इज 2, -1 इसका।
और इसका मिड पॉइंट जो है BC का -1,4 आई एम राइटिंग हियर, और AC का मिड पॉइंट है -2,7। यस, ये -2,7, -1,4, 2, -1, दीज आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। कल हमने आपको बताया था। ओके, यस्टरडे। ध्यान दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा चल रहा है, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो मिड पॉइंट है, इनसे जो ट्रायंगल बनता है, इनसे जो ट्रायंगल बनता है, इसका जो सेंट्रॉइड है, वो दोनों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम है। कल यही डिस्कशन हमारा हुआ था। द सेंट्रॉइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज सेम। सो क्यों ना हम ये मिड पॉइंट वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फाइंड करें। इसको हम DEF कहे, DEF। सो सेंट्रॉइड ऑफ न्यू ट्रायंगल इज द सेंट्रॉइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल विल बी G। हाउ विल यू फाइंड द सेंट्रॉइड? तीनों का x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, तीनों का y कोऑर्डिनेट अपॉन 3। 2 -1 1, 1 -2, -1 upon 3 is the x coordinate of the centroid. What is the y coordinate? Y coordinate -1 plus 4, 3, 3 plus 7, 10 upon 3, y coordinate of the centroid. अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, तो आपको समझो पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो आपके पास ए रहेगा सम कोऑर्डिनेट, वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। फिर आपके पास G रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट -1/3, 10/3, और आपका सामने जो है वो D पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -14। यू हैव दिस पॉइंट D हैविंग कोऑर्डिनेट -14। अब आपके पास ये ऐसा है, ये G और D, ऐसा सोचो, ऐसा ही सोचना इधर, बट इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन दिखेगा इसलिए। तो ये जो रेशो है ये होता है 2:1। देखो, ये हम देखते देखते तुरंत पढ़ते पढ़ते सेंट्रॉइड फाइंड करते हो, और सेंट्रॉइड फाइंड करने के बाद हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अगर गलत है तो कैलकुलेशन गलत है, या हमने किसी जगह एक आधा नंबर गलत लिया है, ऐसा समझो। कंसेप्ट यही है, सेंट्रॉइड मिल गया, सेंट्रॉइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, द सेंट्रॉइड हैज -1/3, 10/3। ये जो G है वो AD को 2:1 में डिवाइड करता है। यस, इट डिवाइड्स, हाँ यही अभी इधर D ली था, इधर यही होगा। ओके ओके, चेंज करता हूँ, यही, हाँ यस, ये जो G है ये को इसमें ये लिया है हमने, हाँ यस बराबर है, ये लिया है, नाम बदल गया था। तो ये जो G है ये इसको 1:3, 2:1 में डिवाइड करता है। देखो, इससे आपको डिस्टेंस भी मिलेगा, अगर मीडियन का डिस्टेंस पूछा है तो वो भी मिलेगा। अगर आपको मीडियन का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये दोनों का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये 1 है तो मीडियन उसका ट्रिपल होगा, कल ही मैंने बताया था। अगर ये 1 है तो मीडियन उसका ट्रिपल, तो ये डिस्टेंस को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा मीडियन यही। बट आज हमारा प्रॉब्लम है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। हमारे पास सेंट्रॉइड मिल गया, हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। फिर यहाँ आपको यूज करना है द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब आपको यूज करना है द इंटरनल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। ये 2:1 में डिवाइड करता है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास है। ये 2 इसके x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा, और इसी के y x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन 3 होगा तो आपको g का x कोऑर्डिनेट मिलता है। तो हम इसके x कोऑर्डिनेट को बोलेंगे x, y। आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए के फाइंड करो, बी के या सी के। अगर आप बी लेंगे तो ऐसा ले लेंगे, सी के लिए अब ऐसा ले लेंगे, रेशो 2:1 यूज करेंगे। सो x, y इसके कोऑर्डिनेट्स है। इट हैज अ कोऑर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 5 मिनट में हो जाता है x, y। बट हमें एग्जाम में हमको बहुत तुरंत मिल जाता, तुरंत वह सेंट्रॉइड निकालो, सेंट्रॉइड निकालने के बाद एक्स वाई। अब हमें क्या है, मुझे ये एडजस्ट करना पड़ रहा है, आपको भी देखते समय। अभी देखो ये बात नहीं है, 2:1 है रेशो है, ये -1/4 है, अब ये है -1/4। तो -1/3 आपका कैसे आया? हाउ यू वी गेट -1/3? तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है -1/3 आपका कैसे आता है? एक्स कोऑर्डिनेट 2 ने -1 को मल्टीप्लाई किया, 1 ने x को मल्टीप्लाई किया, तो -2 + x
अपॉन 3 will become -1/3. Similarly, तो ये 3 कैंसल, -2 इधर आया तो +1, सो x विल बी +1, इसमें x का वैल्यू 1 आता है। देखो अभी y कोऑर्डिनेट 2 into 4 8 +1, ये इधर मल्टीप्लाई होता है इधर, 2 4s are 8 plus y, 8 plus y upon 3 will be 10 upon 3. So what will be the value of y? Y will be 2. So value of x is 1, y is 2. So it has a coordinate 1, 2. Point A has a coordinate 1, 2. See the full process. This is the. अब हमें मेरे लिए आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो आपको इसका भी शॉर्टकट आएगा, आगे का भी। ये इसको अभी जी निकालो, ये डिस्टेंस जी आपको अगर सेंट्रोइड मीडियन का पूछा है, डिस्टेंस जी को 3 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा ये। यस यस, देखिए फिर से मैं आज दूसरे पॉइंट में रिपीट करता हूँ, दिस वाज फॉर पॉइंट ए, नहीं अभी दूसरे पॉइंट में रिपीट करता हूँ लास्ट कुछ मिनट में। सो ये इट वाज फॉर पॉइंट ए। अब हम जाएंगे अनदर पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी टू पॉइंट या बी के लिए, चलो बी के लिए, ये बी एफ, देखो ये बी एफ है, तो हमारे पास ये देखो बी एफ है, एफ के कोऑर्डिनेट है -2,7, पहले आपको पास बी एफ के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये बी और एफ, वो सेंट्रोइड जो है वो जी। अब पहले सेंट्रोइड निकालो, कैसे निकालेंगे सेंट्रोइड? सेंट्रोइड हमारा आया था -1/3, 10/3, समझ लो तीनों के एक्स कॉर्ड, मिड पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल और ओरिजिनल ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम रहता है, 2 -1 -2 अपॉन 3 -1/3, 4 + 7 प्लस सिर्फ -1 + 4 3 + 7 10 अपॉन 3 सेंट्रोइड, दोनों का सेंट्रोइड सेम है। अभी बी बी जी एफ, बी जी एफ देख लो, ये बी जी एफ, मैं इसको हटाता हूँ पहला, बी जी एफ, यस बी जी एफ, कोई बात नहीं है, बी जी एफ, तो ये बी, ये जी और ये एफ, ये रेशियो है 2:1, बी के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बोलो, वाई, जी के कोऑर्डिनेट है -1/3 10/3, और एफ के कोऑर्डिनेट है -2,7, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। तो होता क्या है, इस ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, मिड डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 3, तो 2 इंटू -4, देखो 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -4 प्लस 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स अपॉन 3, एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल गया -1 अपॉन 3, देखो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो -1 प्लस एक्स, तो 4 में क्या ऐड करने के बाद -4 प्लस व्हाट विल यू गेट -1, दैट इज 5, सो एक्स का वैल्यू 5 होगा, 5 नहीं 3, 3 minus 4 is -1, so x का वैल्यू 3 होगा, so x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी 3, इसका x कोऑर्डिनेट है 3, 3 is its x कोऑर्डिनेट, so इसका x कोऑर्डिनेट 3 हुआ। अभी y कोऑर्डिनेट के लिए सिमिलरली 2 into 7 14 plus y upon 3 will be 10, 14 plus y upon 3 will be 10 upon 3, so ये 3 3 गए, y will be -4, so y will be -4, so 3, -4 are the coordinates to -1, that is end of our point B. ओके, इसी तरह से आप पॉइंट सी फाइंड करो। हाँ नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद इजी लगता है, और पॉइंट सी टू 1 रेशियो है, 2 into 2 4, 4 plus x upon 3 will be -1, तो 4 प्लस क्या है आता है, 2 2s are 4, 4 plus what will be -1, 4 plus 3 will be -1, so इसका भी x कोऑर्डिनेट 3 आएगा। सिमिलरली 2 into -1 -2 plus y, -2 plus what will be 10, -2 plus 12 will be 10, so ये 12 आएगा शायद, देखो 12 plus 2 4,